فلسطین کے فیور میں تو بات رکھی ہے، لیکن جس طرح سے ایکشن لینا تھا، جس طرح سے کلیکٹیو سٹینڈ لینا تھا، کلیکٹیو ایکشن لینا تھا، اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے۔ آج جو فلسطین کے اندر وہ مسلمان ہے، ہم لوگ برائے نام مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان فلسطین میں ہے۔ پروڈکٹ ہے اسرائیلی پروڈکٹ جتنا بھی ہے، ایک سروے کے حساب سے 16,000 کروڑ روپے کا ہر مہینے پورے دنیا کے مسلمان خریدتے ہیں، ان کے گھروں کے لیے، ان کی دعوتوں میں۔ کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا نصب العین ہے، یہ ہمارا اپنا ہندوستان کے آئین میں ہے، ہمارا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے کہ ظالم کے خلاف بولے، اور شریعت ہماری یہی کہتی ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کا مذاق نہ بنائیں، اس کے مذہب کا احترام کرے، اسے عزت دے، ان کا کوئی پروگرام ہے اسے عزت دے، ان کا کوئی جلوس ہے اسے اہمیت دے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کو اہمیت دیں گے، وہ آپ کو اہمیت دیں گے۔ دیکھیے، اختلافات اگر بڑھ رہے ہیں تو اختلافات کا بڑھنا وہ اتحاد کے قدم کو نہیں روک سکتا، اور جو عزتوں سے رسوائیوں میں یہ امت جا چکی ہے وہ پھر سے عزتوں کی شاہراہ پر آ جائے۔ یہ ہمیں لگتا ہے اگر یہ ان کا ارادہ ہے اور یہ ان کا قصد ہے، خدا ان کو اس میں توفیق عطا کرے، کامیابی عطا کرے۔ دیکھیے، یہ لوگ جو رسوخ دار ہیں، ان کا جو ہے کافی انفلوئنس رہتا ہے کمیونٹیز میں، ماسس میں، تو یہ لوگ اگر جب اکٹھا ہو کے جب بیٹھتے ہیں ٹاپ لیول میں، تو نارملی جو لوگ نیچے کے لوگ جو ہے وہ آپس میں جو اتحاد قائم کر لیں گے، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ بنگلور میں میر ممتاز علی کی رہائش گاہ پر مختلف مسلکوں کے علماء کرام عمائدین کی خصوصی نشست، فلسطین اور مسلمانوں کو درپیش مسائل پر ہوئی گفتگو۔ راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر سید ناصر حسین، نجف ایران عراق سے آئے شیعہ علماء کرام، صدائے اتحاد تنظیم کے ارکان، انجمن امامیہ کے ارکان نے اس خصوصی نشست میں حصہ لیا۔ اس اہم میٹنگ کے ذریعے یہ بات سامنے آئی کہ اسرائیل کے ظلم و ستم بربریت سے مقدس سرزمین فلسطین میں انسانیت کا قتل ہوا ہے، لیکن افسوس کہ دنیا کے اکثر ممالک خاموش ہیں، خاص طور پر ایک دو مسلم ممالک کو چھوڑ کر باقی مسلم ممالک بھی تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ علماء کرام اور بحرہ جماعت سے تعلق رکھنے والے عباس علی بحرہ نے کہا کہ اسرائیل کے ظلم و ستم، بربریت، دہشت گردی کو اگر قابو میں لانا ہے، اسرائیل کو سبق سکھانا ہے، تو عوام کے پاس، مسلمانوں کے پاس ایک بڑا راستہ یہ ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کو مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ مہاتما گاندھی جی نے انگریزوں کے خلاف اکنامک بائیکاٹ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے آزادی کی لڑائی لڑی، اور اس لڑائی میں گاندھی جی کامیاب ہوئے۔ لہٰذا گاندھی کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اگر پورے عالم کے مسلمان اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں تو اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کریں تو اس کا زبردست اثر ہوگا۔ اس موقع پر راجیہ سبھا کے رکن، AICC ورکنگ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر سید ناصر حسین نے حال ہی میں اپنے UK دورے کا تذکرہ کیا۔ فلسطین کے کاز کے لیے حکومتوں پر کیسے دباؤ ڈالا جائے، اس پر اپنی رائے پیش کی۔ صدائے اتحاد کے سرپرست مجاہد علی بابا نے بھی اپنے قیمتی مشورے اور تجاویز پیش کیے۔ بہرحال اس میٹنگ میں مسلمانوں میں آپسی اتحاد کو مضبوط کرنے پر زور دیا گیا اور اختلافات سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ اتحاد کی کمی، یونٹی کی کمی کی وجہ سے مسلمان اثر انداز ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے، ایک دوسرے سے دشمنی و بغاوت رکھیں گے تو دوسری قومیں فائدہ اٹھائیں گی۔ لہٰذا مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں اور اتحاد کی طاقت کو سمجھیں۔ دوستوں، میں یہاں پر بتاتا چلوں، صدائے اتحاد کے خازن میر ممتاز علی، جو امامیہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ ہیں، انڈو ایران چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ہر سال ماہ محرم کے موقع پر اس طرح کی خصوصی نشست منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ اتحاد بین المسلمین کو قائم رکھے، بارے الہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا،
हम जितने भी मुश्किलात में गिरफ्तार उनकी मुश्किलों को दूर फरमा। तमाम मसलक और मकतब फ़िक्र के उलमा भी जमात है, दानिशवर भी जमात है और आप भी यहाँ पर शामिल हुए हैं, तो आज के हालात के पेश नज़र क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? देखिए, हमारे सदाए इत्तेहाद के नुमाइंदे मुमताज़ साहब के घर पे अलग अलग मसलक के लोगों को आज दावत दी गई थी। मुहर्रम के मौके पे हिंदुस्तान भर से लोग बेंगलुरु आए हुए थे, नजफ सभी उलमा इकराम आए हुए थे, तो यहाँ पे एक नशिस्त थी, इसमें सारे लोग अपने अपने ख्यालात का इज़हार किए, दुआएं भी हुए। मुझे लगता है कि इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की मुलाकातें ख़ासकर आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज करें, दीन के लिहाज से हमारी क्लैरिटी रहे और हम लोग को क्या आने वाले दिनों में करना नहीं करना उसके ऊपर भी क्लैरिटी है। अब ऐसी एक छोटी सी गैदरिंग में इज़राइल और फ़लस्तीन वाले मसले पे लेके इतनी डिटेल और इतनी बारीकी सी बात हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में भी जो है इतनी डिटेल में बात हो सकती है। तो इस तरह के गैदरिंग्स होते रहें तो मुझे लगता है कि हम लोग को आपस में दीन के लिहाज से भी, समाज के लिहाज से भी और हमारे रहन सहन के लिहाज से भी मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं मुमताज़ साहब को और सदाए इत्तेहाद के सारे मेंबरान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप छोटी सी इस बैठक में काफ़ी बातें और दुआएं कौम के लिए फ़लस्तीन के मसले पर जो है हुकूमतों को मजबूर करने पर कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडर्स हों या उलमा हो वो नाकाम साबित हुए हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, बहुत सारे कंट्रीज़ की हुकूमतें जो है फ़लस्तीन के फेवर में तो बात रखी है, लेकिन जिस तरह से एक्शन लेना था, जिस तरह से एक कलेक्टिव स्टैंड लेना था, कलेक्टिव एक्शन लेना था, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। लेकिन हम लोग को इस चीज़ का भी बार बार दूसरों से हम लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन अपने जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ बोलो, मुस्लिम कंट्रीज़ बोलो, जितने कंट्रीज़ हैं, इनके तरफ से क्या आवाज़ उठी है, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है पीस मूवमेंट के लिए, या नहीं तो ये लोग कितने अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स में अपनी बात रखी है और कितना ये लोगों ने बड़े कंट्रीज़ की बात को टो की है। तो इसको लेके आपस में बहस होना चाहिए, आपस में बातचीत होना चाहिए। सिर्फ एक स्टेटमेंट से, एक प्रेस रिलीज से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात हो नहीं सकती, मसला हल नहीं हो सकता। बड़ा पुराना प्रॉब्लम है, बड़ा लंबा प्रॉब्लम है। इसके लिए जो ये इस्लामिक कंट्रीज़ को या मुस्लिम कंट्रीज़ को जो है जद्दोजहद करना चाहिए, और दूसरे बड़े जो हुकूमतें हैं, जो बड़े डेमोक्रेसीज हैं, जो फ़लस्तीन के हक़ में बात कर सकते हैं, तो उनको मजबूर करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन हम लोग को ये एक बात ये भी याद रखना चाहिए कि यहूदियों की पकड़ जो है जितने बड़े कंट्रीज है उन कंट्रीज़ में ज़बरदस्त पकड़ हो रहा है। मैं कुछ दिन पहले मैं यूके में था, करीब 10 दिन का मेरा दौरा था। वहाँ पे कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरी बैठक थी, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इनवाइट किया था, वहाँ पे बात हो रही थी। नई सरकार बनने जा रही है, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट हुकूमत वहाँ पे बन रही है, और उनका इलेक्शन के पहले दावा था कि जो है वो लोग फ़लस्तीन के फेवर में अपनी बात रखेंगे और मजबूर करेंगे इंटरनेशनल फोरम्स में अगर दूसरे कंट्रीज़ को भी फ़लस्तीन के पक्ष में स्टैंड लेने के लिए। अब इतनी बड़ी और पुरानी डेमोक्रेसी है जो फ़लस्तीन के फेवर में खड़ी होने के लिए कोशिश कर रही है, और सरकार जो वहाँ पे 3/4 मेजॉरिटी लेके वहाँ पे आई है, और वो फ़लस्तीन के फेवर में बात करने रेडी है, तो हमारे कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके ऊपर फिक्र होना चाहिए हमारे। सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, इत्तेहाद ज़रूरी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात भी बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में वीडियोस के ज़रिए इख्तलाफात फैलाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे दौर में कैसे इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए आपकी पहल हो सकती है, क्या मशवरे हैं इस सिलसिले में? देखिए, इख्तलाफात अगर बढ़ रहे हैं तो इख्तलाफात का बढ़ना वो इत्तेहाद के कदम को नहीं रोक सकता, और इत्तेहाद की पहल करने की ज़रूरत नहीं है। पहल तो बहुत पहले हो चुकी है, उसको तक़वियत देने की ज़रूरत है।
اور جو کام ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسکالرس نے اور علماء نے اور دانشوروں نے جو کام شروع کیا تھا، اس کو ہمیں بہت حسن خوبی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اور سوشل میڈیا پہ اور یہاں وہاں اتحاد کے نعروں کے بیچ اختلاف کا کچھ شور ہوگا، وہ تو ایک فطری چیز ہے، بہت زمانے سے ہوتا آیا ہے. تو ان چیزوں کو محسوس کر کے اپنے اہم کام سے میرے خیال میں قدم پیچھے نہیں لینا چاہیے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں حالات حاضرہ کے پیش نظر؟ حالت حاضرہ تو مسلمانوں کے اوپر تو جب سے اسلام قائم ہوا تب سے ہے. افسوس یہ کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس قوم میں شعور پیدا نہیں ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے. ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ اختلافات کی باتیں جو سوشل میڈیا پہ زیادہ ہو رہی ہیں، تو ہونا بھی چاہیے. اچھے اور برے کی پہچان کب ہوگی؟ ایک طرف برائی جب رہے گی تبھی تو اچھائی معلوم پڑے گی. نہیں تبھی تو اچھائی معلوم پڑے گی. اور اختلافات اگر نہیں ہو تو اتحاد کا مزہ بھی نہیں آتا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کریں گے. ابھی جتنے یہاں پر مہمان خصوصی جو ہے، جو نجف اشرف سے آئے ہوئے ہیں اور سورت سے، گجرات سے بھی کچھ مہمان یہاں پر آئے ہوئے ہیں. ابھی شیعہ مسلک سے تو یہ تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم تو بس انسانیت کے ناطے جو صدائے اتحاد جو کام کر رہی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے. اختلافات جب تک نہیں ہوں گے تو اتحاد اور دوسری چیزوں کی پہچان بھی نہیں ہوگی. اختلافات کون چاہتا ہے؟ شیطان کی نسل چاہتی ہے، شیطان چاہتا ہے. ہم تو بس ان کے ماننے والے ہیں جو امن اور نیک راستہ دکھانے والے، جن کے نقش قدم پہ چلنے والے ہم لوگ ہیں. بس ہمارا کام ہے وہی جو ہمارے بڑوں نے بتایا ہے، اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے زیادہ ذمہ داری کس کی ہونی چاہیے؟ ذمہ داری تو ابھی وہ صدی ہے 15ویں صدی، سمجھے نا. ابھی اس سے پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں، کسی کے اندر شعور نہیں ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا مسلمان گاجر مولیوں کی طرح کٹیں گے. جو کٹ رہے ہیں آج جو فلسطین کے اندر، وہ مسلمان ہیں. ہم لوگ برائے نام مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان فلسطین میں ہے. جو جن کو وہ کٹنا تھا وہ کٹ رہے ہیں. اب رہی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، جب پیارے صحابہ جب موجود تھی ان کی ایک محفل میں، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں کیا مسلمان کم ہوں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمان زیادہ ہوں گے. مال کی محبت اور جینے کی تمنا نے جو ہے مسلمانوں کو دور کر دیں گی. یہ اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث ہے، یہ وہی وقت ہے. یہ ابھی کچھ ہی 2 پیڑھی نہیں چل سکتی دنیا، اور کیا بات کریں گے. انسان کا ضمیر ختم ہو چکا ہے. ایمان اگر اسلام ہوتا تو آج یہ فلسطین کے اوپر جو باتیں ہو رہی وہ نہیں ہوتی تھی. قرآن کی اگر بات سمجھتے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اب یہاں بھائی کی بھی اس کے اندر خون میں اتنی گرمی بھی نہیں ہے کہ بھائی کا درد کیا ہے یہ سمجھنے کی. تو اب ایسے ماحول میں یہ تو ہونا ہے، اللہ کے پیارے حبیب کے فرمان ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ فلسطین جو ہے، فلسطین یہ ثانیہ کربلا ہے. ہماری نظر میں ثانیہ کربلا ہے. جہاں وہ کرتے تھے وہ آج یہاں دکھا رہے ہیں. ہمیں دیکھنے کا موقع مل گیا کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. مسلم ممالک ہے کہاں؟ یہودی کی نسل ہے سب. تو ہمیں ان کے اوپر کیا کہنا ہے؟ جتنے غیر مسلم، جتنے کنٹریز فلسطین کے حق میں آواز اٹھائے انسانیت کے ناطے، لیکن یہ مسلم ممالک کا جو نام ہے. تشریف آوری نجف سے آپ آئے ہیں، کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ بس تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور بتا سکے کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، اور عاشورہ کے بیانات کے وہاں پر کیا ہوا تھا، مقصد حسین کیا تھا، یہ تمام چیزوں کا ہم نے 10 دن تذکرہ کیا. اور مومنین بنگلور نے اس کو بہت اچھے سے سماعت فرمایا، اور امید ہے وما علینا الا البلاغ. ہمارا کام تو پہنچانا تھا، انشاءاللہ عمل بھی ان باتوں پر کیا جائے گا جو ہم نے بیان کیا انشاءاللہ. آپ کو جو ہے سنی نمائندوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی یہاں پر، جی تو کیسے محسوس ہوا اور کیا باتیں ہیں؟ خدا کا شکر الحمدللہ، ہم لوگ اتحاد المسلمین کے قائل ہیں، اور مسلمان ہمارے بھائی، جیسے کہ رسول نے فرمایا المسلم اخو مسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے.
अब वो चाहे किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, रसूल की हदीस मुतलक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का तज़किरा है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। अब चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अहम चीज इंसानियत है बस। इत्तेहाद के लिए एक बात यहाँ पर ये कही जाती रही है कि अपने मसलक को छोड़ो मत और दूसरों के मसलक को छेड़ो मत। जी ठीक है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शरीयत का मसला ये है कि हम लोग दूसरों के मजहब का एहतराम करते हैं ताकि वो हमारे मजहब का एहतराम करें। हिंदुस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, अल्लाह ने बंदे को मुख्तार पैदा किया है, उसे अपने मजहब का तयन करने का हक है। और शरीयत हमारी यही कहती है कि आप किसी भी मजहब का मजाक न बनाएं, उसके मजहब का एहतराम करे, उसे इज्जत दे, उनका कोई प्रोग्राम है उसे इज्जत दे, उनका कोई जुलूस है उसे अहमियत दे। क्यों? इसलिए कि आप उनको अहमियत देंगे वो आपको अहमियत देंगे। कमा तुदीन तुदान, कुरान कह रहा है जैसे आप करेंगे वैसे आपके साथ होगा। लिहाजा कोई भी मजहब किसी मजहब की तौहीन करने की इजाजत नहीं देता। इस्राइली प्रोडक्ट्स की बाइकआउट करने की बात इंशाल्लाह हम तो हर मजलिस कैसे हो सकता है? हम हर मजलिस यहाँ पर जी हर मजलिस में हमारे जितने भी खतीब है, जैसे मौलाना साहब ने भी और बहुत से खतीबों ने इस बात पर गौर दिया है और अक्सर बयान भी करते हैं कि इस चीज़ों से परहेज किया जाए। लेकिन हकीकत वही जो मैंने यहाँ भी बयान की कि अगर ये आली पैमाने पर किया जाए और हुकूमत की तरफ से इसमें मदद मिल जाए तो इंशाअल्लाह इस मकसद में हम कामयाब हो जाएंगे। मेल मिलाप का एक पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुमताज़ भाई ये हमेशा हर साल इस तारीख पर ये उनकी एक कमेटी कह लीजिए, तंजीम कह लीजिए, सदा इत्तेहाद के नाम से, उसके मातहत ये उसके ज़ेर इंतज़ाम ये प्रोग्राम करते हैं और ये उसमें अपना जो उनके अखराजात ये सब उसका सरफा बर्दाश्त करते हैं। और उनकी हमें जो लगता है, उन्होंने कभी ज़बान से बताया नहीं, लेकिन उनके इस काम से हमको लगता है कि उनकी सारी कोशिश इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा का जो शिराज़ा इधर उधर बिखरा हुआ है वो एक जगह मुत्तहिद हो जाए और सब जो एक ताकत बिखर चुकी है वो ताकत सिमट के फिर यकजा हो जाए और जो इज्जतों से रुसवाइयों में ये उम्मत जा चुकी है वो फिर से इज्जतों की शाहराह पर आ जाए। ये मुझे लगता है अगर ये उनका इरादा है और ये उनका कस्द है, खुदा उनको इसमें तौफीक अता करे, कामयाबी अता करे और हर मुसलमान को अपनी जगह पर ये तौफीक खुदा की जानिब से अता हो। ये दुआ करते हैं कि वो इत्तेहाद की बात करे, इख्तिलाफ की बात ना करे। इख्तिलाफात से नुकसान जो हो रहा है वो सबके सामने है, जाहिर सी बात है, वो रोजे रोशन की तरह वाज़ेह है। सूरज अगर निकल रहा है और उसका आदमी इनकार करे कि नहीं साहब सूरज नहीं निकल रहा है तो वो एक बेवकूफ़ी पे बात, हम लोग उसको आदमी अंधा कहेगा। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं साहब इख्तिलाफात से कोई फायदा होता है तो वैसे जैसे सूरज का इनकार करने वाला है। तो आखिर में क्या पैगाम यही है कि जो हर आदमी को अपनी जगह पर ये कोशिश करना जरूरी है कि जो उम्मत के काम आए उसकी कोशिश, और वो काम सबसे पहले, बहुत सारे काम है लेकिन सारे कामों में सबसे पहले काम ये है कि जो आपस में बिखराव है उस बिखराव को एक जगह समेट के जो है गुलदस्ता बनाया जाए। इसलिए कि अलग अलग बिखरे हुए फूल कभी किसी भी चीज की शोभा और जेबा नहीं बढ़ाते, फूल उसी वक्त किसी भी चीज की जीनत बढ़ाते हैं जब वो एक गुलदस्ते में आके जमा हो जाते हैं। आज की इस मुलाकात का लबे लुबाब क्या है आपके मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुलाकात का सबसे बड़ा लबे लुबाब ये है कि मुसलमान इंसान बहैसियत इंसान एक जगह जमा होने के बाद कम से कम कुछ वो मौज़ूआत पे बात करें, उन टॉपिक पे बात करें कि जिसकी आज इंसान बहैसियत इंसान, बहैसियत एक हिंदुस्तानी, बहैसियत एक मुसलमान ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए ये क्या है, बहुत अच्छा मौका रहा और बहुत अच्छे अंदाज में बाकायदा तौर पे इस पर मुख्तलिफ जो है क्या नज़रियात पेश किए गए। उन नज़रियात पे जो है क्या कुछ किया जा सकता है उम्मत की भलाई के लिए। तो कैसे होना चाहिए काम और देखिए कैसे आगे बढ़े? इन हालात हाजरा को देखते हुए अभी जिस तरीके से दुश्मनान इंसानियत की अलगार पूरी इंसानियत पे हो रही है, उन दुश्मनान इस्लाम की अलगार से बचने के लिए और अपने आप का दिफा सही मानों में करते हुए और एक अच्छे तरीके से एक चीज को पेश कर सकें कि इस्लाम क्या चीज है, इंसानियत क्या चीज है, उसके लिए अब हमें मजलूम की हिमायत ये कंपलसरी तौर पे जरूरी है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा नस्ल आइन है, ये हमारा अपना हिंदुस्तान के आइन में है।
हमारा हक है, हर इंसान का हक है कि जालिम के खिलाफ बोले, जालिम के खिलाफ खड़ा रहे, जिस तरीके से भी खड़ा हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो तलवार लेके खड़ा हो, क्लाशनकोव लेके खड़ा हो, मिसाइल मार दे। हाँ, जो मार सकते हैं उनके मारने में उनके ऊपर वाजिब है मारना हो, जो नहीं कर सकते हैं जितना हो सकता है कम से कम जो है क्या उनकी जो है क्या दुश्मनों की उन चीज़ों का बाइकाट किया जाए जिससे उनका इक़्तिसाद मजबूत होता है। इक़्तिसादी जंग भी कोई मामूली जंग नहीं है, बहुत बड़ी जंग होती है इक़्तिसादी तौर पे, अगर हम उसको समझ सकें और उस पर हम अमल कर सकें। और बिलखुसूस इन अय्याम में माह मुहर्रम का सबसे बड़ा पैगाम करबला से लेके गज़ा तक का यही सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अपने आप को समझो, अपनी कीमत को समझो, उम्मत को समझो, जिस उम्मत से तुम्हारा ताल्लुक है उसको समझो, जिस नबी की तुम उम्मत हो उसको समझो। समझने के बाद फिर पूरी दुनिया की उम्मत, पूरी दुनिया में रहने वाली उम्मतियों को समझकर उस पर अमल करो तो कामयाबी मुमकिन है। अगर नहीं तो फिर अगर उम्मत से दूर रहेंगे, जितना दूर रहेंगे उतना ही जो है इख्तिलाफ बढ़ता जाएगा और कोई नतीजा हासिल नहीं है। तो इस तरह से जब एक तरफ होंगे, इस तरह की मुलाकातें बहुत जरूरी हैं। जितने भी इस्लामी मसालिक हैं, इस्लामी से बढ़ के क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट और तमाम मुसलमान, इस तरह से जितना मिलन होता रहेगा, उनकी बैठक होती रहेगी, मिलते रहेंगे, उतना करीब होते रहेंगे, उतना एक दूसरे को पहचानते रहेंगे। जब पहचान लेंगे तो ये दूसरी छोटी मोटी बातें जो होती है ना, वो बिल्कुल से बिल्कुल खत्म होती रहती हैं। ये छोटी बातों को लेकर इख्तिलाफ पैदा करते हैं। सैयद अली बाकर आबिदी, चेयरमैन अहलुल बैत एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, बेंगलोर। नशिश थी मुमताज़ साहब के घर पे, कुछ मेहमान खसूसी जो इराक से और ईरान से आए हुए थे, तो हम लोग भी सदा इत्तेहाद के लोगों को भी दावत थी, हम लोग सब शामिल हुए और बहुत ही मुफीद बातें हुई है और कई मसलों के ऊपर गुफ्तगू हुई। आम मसला तो यही था सभी का, उलमाओं का, और उनका खासकर शिया जो इमाम उलमा थे वो कह रहे थे कि अमीरात और अरब और मुस्लिम कंट्री जो 56 कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, अगर वो ये हो जाते हैं और इजराइल का बाइकाट करते या विरोध करते या उसके ऊपर आवाज़ उठाते तो बहुत बड़ा फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद होती थी। मगर अफसोस ये है कि जैसा कि कह रहे हैं सभी के सब मुस्लिम कंट्री खामोश बैठी हुई है, इसकी वजह तो मालूम नहीं हो रही है। सियासती जो भी करते हैं, जितनी भी कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़ है, अब हम वो सियासतदानों को अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो बस नहीं होता है, क्योंकि उनको तो सियासत करना है, उनकी कंट्रियों को चलाना है और कई चीज़ें आज की टेक्निक के हिसाब से और इजराइल को साथ देना है। जब सऊदी जैसी एक बड़ी ताकत जो मुस्लिम ताकत है और जहाँ पर काबतुल्लाह और बैतुल्लाह है, उस जगह के लोगों ने भी इन यहूदियों को जगह दे दी है, तो उसके बाद हम आगे क्या बोल सकते हैं। अमीरात के अंदर आज जिस बुत परस्ती से लोग बाग मुसलमान और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बुत परस्ती के खिलाफ इस्लाम को छेड़ा था, वही आज बुत परस्ती हम अरबस्तान के अंदर और अमीरात के अंदर मंदिर और पूजा पाठ देख रहे हैं। तो हुकूमतों की बात अपनी जगह, आम हाँ, मुसलमानों तो की क्या जिम्मेदारी होती है? इस मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है कि आज जो प्रोडक्ट है, इजरायली प्रोडक्ट जितना भी है, एक सर्वे के हिसाब से 16,000 करोड़ रुपए का हर महीने पूरे दुनिया के मुसलमान खरीदते हैं, उनके घरों के लिए, उनकी दावतों में, उनके आम मामूलियात में वो लोग इसराइल के प्रोडक्ट को खरीदते हैं। कोका कोला हो गया, चॉकलेट होगी, दूसरे साबुन हो गए, पेस्ट हो गए, कितनी ही चीज़ें हैं जो आम बहुत बड़ी लिस्ट है। और उसकी ताकत बनी है अपने माल से ही, अपने व्यापार से ही। एक सर्वे के हिसाब से पूरी दुनिया के मुसलमान इजरायली 16,000 करोड़ का प्रोडक्ट हर महीने खरीदते हैं और वो इनकम इजराइल को होती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उन 16,000 करोड़ से कितने बम और कितने मिसाइल और कितने आज फलस्तीनियों को मारने के लिए आपने मदद की है। जब आप उसको एक कमाई का जरिया बन के देते हैं तो इसका सही डायरेक्टली यही होता है कि आपने इजराइल को मदद कर रहे हो और उसकी कमाई में बरकत दे रहे हो। तो आपको चाहिए कि हर मुसलमान का पहला फर्ज है कि उसकी ताकत उतनी है
कि आज मैं उसके प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाऊं या ना खरीदूं, तो कम से कम एक छोटा सा माशा भर भी हमारी जो कोशिशें है वो इस्लाम के ऊपर लिए और मुसलमान के लिए हमारी कोशिशें ये अल्लाह को पसंद आएगी और ये करनी चाहिए, क्योंकि बाइकॉट से बड़ी बड़ी शख्सियतें हिल गई, बड़ी बड़ी हुकूमतें हिल गई। जब गांधी जी ने बाइकॉट किया तो अंग्रेज जैसी ताकत को हिंदुस्तान से हटा दिया। तो इंसान का अज़्म होना चाहिए, उन लोगों को ये इरादा करना चाहिए कि इस चीज़ की बाइकआउट करें, और ख़ासकर इस्राइल प्रोडक्ट को हमारे मुसलमानों के घरों के अंदर, दुकानों के अंदर, दावतों में नहीं आना देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी एक फ़लस्तीनियों के लिए उनकी कुर्बानी और उनकी इमदाद होगी। कोशिश रहती है कि माह मुहर्रम की मुनासिबत से सभी तबकों और मसलकों को जोड़ा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हर साल जो है माह मुहर्रम में जो है मजालिस अज़ा के लिए उलमा हज़रात जो है मुख्तलिफ मकाम से आते हैं बेंगलोर को, नॉर्थ इंडिया से वगैरह से। इस बार जो है हमारे जो एक मेहमान आलिमुद्दीन जी वो नजफ अशरफ से आए थे। तो हम लोग क्या करते हैं, मुहर्रम की 12 तारीख को शाम में एक डिनर कार्यक्रम हमारे घर में करते हैं, ताकि तमाम जो सदा इत्तेहाद के जो तमाम मसालिक के जो हमारे जिम्मेदारान हैं, उलमा हज़रात हैं, उनके साथ में तबादुल ख्याल करते हैं हम लोग। तो ये हर साल की तरह इन साल भी इंशाल्लाह किए हैं और आगे भी करेंगे इरादा इंशाल्लाह। तो इत्तेहाद के लिए कोशिशें होती हैं। जी जी। और इसमें कैसे आपको कामयाबी भी मिल रही है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर आए हैं और खासतौर पे एमपी साहब भी आए हैं, और जो असर और रसूख रखने वाले उलमाए कराम भी यहाँ पर आए हैं। जी देखिए, ये लोग जो रसूखदार हैं, इनका जो काफी इन्फ्लुएंस रहता है कम्युनिटीज में, मासस में। तो ये लोग अगर जब इकट्ठा होकर जब बैठते हैं टॉप लेवल में, तो नॉर्मली जो लोग नीचे के लोग जो है वो आपस में जो इत्तेहाद कायम कर लेंगे। ये हमारा इरादा है इंशाल्लाह, नीयत यही है। और कामयाबी जो है धीरे धीरे मिलेगी, ऐसा नहीं हो कि एक ही दिन में मिल जाए कामयाबी। कोशिश हमारी बाकी रहेगी, जारी रहेगी इंशाल्लाह के हम लोग ये सिलसिले को जारी रखेंगे इंशाल्लाह।